Participants, I'm sure most of you are now ready to join the session. Please join as quickly as possible. I welcome you all to the second technical session of day 1 of the workshop. And I proudly introduce Dr. Yasmin Khan, our second speaker this evening. She is a young and very talented teacher working as an assistant professor in the Department of Statistics and Operation Research, Aligarh Muslim University. She is a proud student of Professor Athar Ali Khan, and she has completed her PhD in 2016 under the supervision of Professor Athar Ali Khan. Dr. Yasmin has completed her graduation, her post-graduation, and MPhil in statistics from the Department of Statistics and Operation Research, AMU. She teaches many courses of statistics, including statistical analysis with R to the undergraduate and postgraduate level students. And in fact, she is an expertise in R software. Her research interests include Bayesian statistics and development of new function in R for complex distribution, among many others. Dr. Yasmin has a good number of research publications to her credit, and I'm sure that her expertise and rich experience in R software will benefit the participants a lot. I now request Dr. Yasmin to please start the session now. Dr. Yasmin, over to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So firstly, I would like to thank all the members of Computer Science, especially Dr. Asim sir, convener of the workshop, and also Dr. Arman sir, which is coordinator of the workshop. I am honored to have an opportunity to interact with you on the topic of linear model. I'm going to discuss the regression analysis with R. Right? So, firstly, we should discuss about some concept of linear model. That what is actually linear model before going to R software. So, linear model, actually summarizing data in the form of equation, is called linear model. Dr. Right? Yasmin, sorry for interrupting you. Please Yes, share sir. your screen. You forgot to share your screen. Okay, I'm so sorry. Yes. Screen is sharing with all of the participants. Yes, it is visible now. Now you share your presentation. Okay. So first of all, we should know what is linear model. As I said, linear model is summarizing data in the form of equation, right? So we are going to discuss two types of linear regression. First is simple linear regression and another is multiple linear regression. What is actually simple linear regression model? Mathematically, it is represented by y is equals to beta naught plus beta 1 x, right? It means we have simple linear regression model consists of two variables, right? It consists of two variables. One variable is called the input of the study. One is the input of the study and another is the output of the study. Y, which is represented by y, is the output of the study. So that's why we call this y as response variable, right? This is called response variable, and the second x variable, which is the input of the study, is called explanatory variable, or you can say regressor, or you can say covariate explanatory variable, right? So in simple regression model, we have only two variables and we want to investigate the relation between these two, right? The beta 1, which is the coefficient of x, represents the slope. What does it represent? This beta 1 causes a change in the y variable, which is the output of the study, as x changes by 1 unit.
what the slope does, slope causes a change in the output of the study as the input of the study changes, right? So that's about the simple linear regression model. Just suppose we have two. For this we discuss the income data. For simple linear regression model, we discuss the income data. So income data involves two variables. First is income and the second is happiness. Can anyone tell me that among the income and happiness data, which one is the output of the study and which one is the input of the study? Can anyone tell? Among these two variables, which one would be? Income is the input and happiness is the output. Right. Means हमें क्या check करना है? What we want to check that what is the effect on the happiness as income changes, right? As income changes, what is its effect on the happiness? So the data which I am going to discuss is imaginary data, and the number of variables, total number of variables, हम कहेंगे if we are going to analyze simple linear regression model. If someone asks that how many number of variables are there, so it is simple that since in simple linear regression model we have only two variables, so हमारे पास जो data होगा उसमें हमारे पास दो variables के data दिए होंगे, right? So next thing is which we want to observe is how many number of observations are there in your data. आपकी जो भी data दिया हुआ उसमें कितने number of observations है. So the R command for this, just suppose this is the data, you can see the data, that's the data of income data. You can have a look of the data, right? This data has two variables, one is income and another is happiness, and the total number of observation is 498. Total number of observation is 498. 498 is the total number of observations. If now the very important thing is how to create a data. Data creation is very important in R, and it is the first step. It must be the first step. So how to create a data? आप कोई भी data R में किस तरीके से create कर सकते हैं? So for this, if data is already given to you Excel, then it is very important. It is very easy to import your data from Excel to R console. How will you import? The function which is used to import the data from Excel to R console is read.table. Read.table is the function. What is the function? Function is a read.table which is used to import the data which is already in Excel to the R console. So the statement, the theory which is the words which is written before the bracket is called the function, and all the words which is written inside the bracket is called argument, right? So here you can write clipboard, comma, header is equals to true, right? So what you have to do, first you have to go to the data. You have to select all the data by doing Control A. Then you have to copy the data by doing Control C. But before enter into the command, you have to copy the data, right? You have to select the whole data and copy the data. Then only you have to run this command. Okay? Then press enter. Your data is in your R console. Okay? If you want to name this data, right? मैंने just ये लिख दिया. If you want to name this data, then you have to assign an object name as your own wish. Suppose the data is about the income and happiness, you just name the data as income. Okay. So the name of your data is now income data, right? So to call the data from the another source to the R console is read.table. You can use read.table to call the data. Now your second step after calling the data, your second step is to save your data. So for saving your data into the R console, the function is write.table. Write.table is the function to save the data, and its command is, what is the name of the data? The data name you have already assigned as income. So just write the
income in double quotes and then comma within double quote and write income dot txt, right? Income dot txt and then enter, right? This step will save your data into your document folder. जहाँ जो भी आपको document जो भी document directory में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, this data will get saved. Now you can use your data whenever you switched on your laptop, right? This data is saved. This data is saved in your directory. So this is the way you can import your data from Excel to R console. अगर आपके पास अब क्या है कि अगर डेटा जो है is not given in Excel, then how will you create your data? ये तो ये तरीका हो गया कि if your data is given in Excel, then how to import it, right? If your data is not given in Excel and you have to enter your data, then how will you enter your data, right, in R? So the concept, there's a concept of data frame. There's a function which is available in R called data.frame. Data.frame is a function which is used to combine all the to combine a number of vectors into a data frame. We can simply add all the vectors as argument to the function data.frame. क्या करेंगे? Data frame क्या होता है? Data frame is a table, you can say is a table or a two-dimensional array-like structure in which each column contain value of one variable and each row contain one set of values from each column. ठीक है? The data stored in a data frame can be numeric. हम ये नहीं कह सकते कि if your data is quantitative only you can use data.frame. No, data.frame जो है it can store numeric, factor or character type of data. Right? Just suppose मैं data entry करते हैं. Just suppose how to create a data frame मैं ये बताती हूँ. If your data is not available to you, you have to enter your data. If your data is not available in Excel or any other format, then how will you enter your data? Just type income. जैसे मैं लिखती हूँ 500, 400, 1000 or 6000. ठीक है? This is the data for income. You have to. This one is called a data vector. You are entering your data as a vector form, right? As a vector form, you are entering your data by assigning an object name income is equals to combination function C, then open bracket, then enter all the observation by separating them using comma, right? And then close the bracket and enter. Right? The second, just suppose there's second happiness, second variable is happiness. Enter 147. This is the scale on which happiness is measured. 1 to 10 is are the scale on which happiness is measured. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, right? There are two variables and you want to create a data frame. Then how will you create? So the function for the creation of data frame is data.frame. So just suppose you are assigning a name data, right? And using the function data.frame, then bracket open. क्या बताया था मैंने कि जो भी आपने वेक्टर क्रिएट किया है यू हैव टू कंबाइन इन data डॉट फ्रेम बाय सेपरेटिंग देम विथ कॉमा. तो हमने दो वेक्टर्स ऊपर क्या किए, क्रिएट कर लिए हैं. एक का है जो ऑब्जेक्ट नेम है इज इनकम एंड another vector named as happiness. So you have to enter these two object name into the data frame by separating them with comma. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका इनकम आपने लिख दिया, देन आपने क्या लिख दिया हैप्पीनेस. ठीक है ना, जो आपने वेक्टर ऊपर डिफाइन किया है उसका जो आपने ऑब्जेक्ट नेम असाइन किया आप यहाँ उसको कॉमा से सेपरेट करके डेटा डॉट फ्रेम में यहाँ पे आप एंटर कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, ये लिख दिया आपने. अब ये जो है ये आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया. टू सी योर डेटा फ्रेम यू हैव टू print your data frame into your R console. What you have to do, you have to write the object of the data frame. जो भी आपने डेटा फ्रेम डिफाइन किया है उसका आपने जो ऑब्जेक्ट नेम दिया है you have to enter, you have to print that data into here as just write data and enter, then your data is here. जो भी हमारा डेटा, देखिए डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया था. ये कंसोल है जहाँ पे हमने
एक्सेल से ये फाइल को इंपोर्ट किया है, तो ये क्या है, ये इसी तरीके का डेटा आपने क्या किया, खुद से क्रिएट कर लिया. इफ योर डेटा इज नॉट एंटर्ड, अगर आपके पास डेटा की हार्ड कॉपी एंड यू हैव टू एंटर योर डेटा, ठीक है, देन you can use data frame, right? So this is the way you can create your data frame, and then further you can analyze your data. So simple linear regression की ये बात होगी. Then we come to the multiple linear regression model. Multiple linear regression model, as the name suggested, you can understand that if we have more than one explanatory variable or more than one regressor, then we deal that type of data under multiple linear regression model. और इसके जो mathematically you can write y is equals to beta naught plus beta 1x. If it is just that is it, then this is the case of simple linear regression model. And if we have more than x, so ये क्या है, x जो है that is represent, which is the input of the study. You can say if you have more variable which is the input of the study, then that comes under multiple linear regression model. Beta naught plus beta 1 x1, beta 2 x2. It depends कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं आपके how many number of variables are there. ठीक है, तो for analyzing multiple linear regression model, the data that we use is hard data. Hard data. You can have a look of the hard data. See this. So the variables that includes in the data is biking, smoking, and heart dot disease. So now anyone can tell me that what is the output of the study and which variables are the regressors or the explanatory variable. Is in 3 variables में से कौन सा variable है which will give you the output of the study, which you want to get the results based on that variable, और कौन सा 2 variable होंगे. याद रखिए आपके पास 2 variables ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, independent होंगे, और हमारा एक हमारे पास response variable होगा which depends on those 2 variables. तो आप मुझे बताएं जरा कि इन तीनों में से कौन सा वेरिएबल जो है वो आपका होगा रिस्पॉन्स वेरिएबल, एंड विच 2 वेरिएबल इज योर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. हार्ट डिजीज जो है वो हार्ट डिजीज, राइट, हार्ट डिजीज इज द रिस्पॉन्स वेरिएबल. ठीक है, हमें क्या चेक करना होगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बाइकिंग एंड स्मोकिंग ऑन हार्ट. ठीक है ना, इन दोनों वेरिएबल्स का हम हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको यहाँ पे चेक करना होगा डेटा. सो दैट्स द डिस्क्रिप्शन. एंड जो बोथ डेटा है, जो दोनों डेटा है, these both data are imaginary data which I am going to use. Right. So now come to these are the content which I am going to cover here. So first, getting started in art, as Athar sir has discussed so many things, how to create a file in R Studio as R Markdown, right? So you just have to go to this file, then new file, then you can go R Markdown, or there are so many options. You can also go for R sweeps, right? R Markdown में अगर आप काम करना चाहते हैं, I prefer to work in R Markdown, so I have made all the documentation in R Markdown. Then you go to the R Markdown, a new file has been opened, will open, and you can start your work there. So before going further, you have to install certain packages. Why we need to install? If there are so many packages which are available in our base, but there are so many packages which are not available. To, as Athar sir has also mentioned, to add those packages into base, what we have to do, we have to install those packages, right? So the function for installing packages is install.packages, and whatever package you want to install is within double quotes, right? You have to write install.packages, then bracket open, then within double quotes you have to write the name of the package which you want to install. So there are certain packages which I used here. First is ggplot2, right? ggplot2 is the first package, is an open source data visualizing package for the statistical programming language R. The second package is dplyr. The package used in R is a structure of data manipulation that provide a uniform set of vectors. The third one is Broom. The Broom package takes the messy output of built-in function in R. And the fourth one is ggpubr.
the package which facilitate the creation of beautiful ggplot2 based graph, right? So these are the packages you need to install. Acha. Installation is not the only solution by using the function which is available in that package, or by using the data which is available in that packages. You have to load those packages into the R console. For this, the function which is used is library. Installation सिर्फ इंस्टॉल करने से नहीं होगा, आप इंस्टॉल करेंगे देन आपको उस जो भी आपने पैकेज को डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, उसमें कोई फंक्शंस अवेलेबल होंगे जिनको आपको यूज करना है। तभी आपने क्या किया है, तभी आपने उस जो हमारा पैकेज है उसको इंस्टॉल किया है। तो उनके पास जो भी हमारे पैकेज है उसमें जो भी हमारे फंक्शंस एंड डेटा अवेलेबल है, उनको यूज करने के लिए इट इज नेसेसरी टू लोड देम। फॉर लोडिंग दैट फंक्शंस और डेटा to your R environment, you have to use the function library. Install कर लिया, अब आपको लोड करना है, उसके लिए जो फंक्शन यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे, लाइब्रेरी। तो जितने हमने इंस्टॉलेशन वहां किए हैं पैकेजेस को इंस्टॉल, उनको लोड करने के लिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया है, लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके हमने जो भी हमारा पैकेज था विद इन ब्रैकेट्स उसको हमने लिख दिया है। ठीक है, लाइब्रेरी करके हमने चारों पैकेज को वन बाय वन यहाँ पे कर देना है। आपको आर कंसोल पे इसको लिखना है एंड जस्ट आपको एंटर करते जाना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जितने भी फंक्शंस एंड डेटा वहां पे अवेलेबल होंगे इस पैकेजेस में, वो सब आपको लोड हो जाएंगे। देन यू कैन यूज एनी फंक्शन और एनी डेटा अवेलेबल फॉर दैट रिस्पेक्टिव पैकेज। कोई भी उसमें जो भी पैकेज में जो अवेलेबल होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ डेटा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपका डेटा फ्रेम, अगर आपको डेटा को क्रिएट करना है देन आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वेक्टर डेटा को वेक्टर फॉर्म में आप एंटर करेंगे। डेटा वेक्टर फॉर्म में एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, उस जितने भी वेक्टर्स हैं उनको कंबाइन कर देंगे एक फ्रेम में बाय यूजिंग द फंक्शन डेटा डॉट फ्रेम। फिर हमें क्या, अगर हमारे पास क्या, ये तो बात हो गई कि अगर आपको डेटा खुद से एंटर करना होगा, इफ योर डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल विद सम फॉर्मेट सच एज एक्सेल, तो आप क्या करेंगे, तो आपको जस्ट एक आपका काम होगा कि हाउ टू इंपोर्ट कैसे करें हम जिस वर्किंग डायरेक्टरी में हम वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना होगा रीड डॉट टेबल, वो भी मैंने आपको लिख के बता दिया कि किस तरीके से करेंगे, बाय यूजिंग क्लिपबोर्ड एंड हेडर इज इक्वल टू ट्रू आर्ग्यूमेंट। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी क्या है, जहां पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट, जहां पे आपके डेटा अवेलेबल है, यू हैव टू कॉपी दैट डेटा। उस डेटा को हमें क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। फिर हमें रीड डॉट टेबल की कमांड को रन करना होगा, अदरवाइज आपकी जो ये कमांड है रीड डॉट टेबल, ये रन नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर calling the data, it is necessary to save your data. For saving data, the function which is used is write dot table. यहाँ फाइल लिखा है, आपको जो भी आपने रीड डॉट टेबल में आपके डेटा को एक ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन किया होगा, तो वो यहाँ पे आपको फाइल की जगह वो ऑब्जेक्ट नेम दिया। हमने जनरली यहाँ पे सिर्फ फाइल लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपको फाइल का नाम लिखना होगा जिससे आपने डेटा को क्या किया है, रीड किया है, वो आपको फाइल का नाम दे देना होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अब डेटा की हमें समझनी चाहिए। अब हम डेटा के देख रहे हैं कि हमारा हम क्या किस उस पे वर्क कर रहे हैं कि डेटा हमें अवेलेबल है एक्सेल पे, हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास, और अगर इन केस हमारे पास क्या हो, जो डेटा ऐसा हो जिसको हमें पूरी तरह से स्टडी करनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो आप हेड एंड टेल कर सकते हैं। हेड क्या होता है, हेड विल गिव यू द स्टार्टिंग 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इससे क्या पता चल जाएगा कि हमारे डेटा में कितने वेरिएबल्स हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा ना, इनकम एंड हैप्पीनेस आ गया, इट्स मीन यू हैव 2 वेरिएबल्स व्हिच इज अवेलेबल इन योर डेटा। ठीक है, अब अगर आपको देखना है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर अवेलेबल इन द डेटा, देन यू सिंपली हैव टू डू द टेल। आप क्या करेंगे, इसके बाद टेल कर देंगे। तो देखिए हमने कर दिया टेल इनकम। ठीक है, व्हाट टेल विल डू, टेल क्या करेगा कि टेल विल गिव यू द लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन ऑफ योर डेटा। ठीक है, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर आपको ये देखें, हमने यहाँ पे किया था, ये हमने इनकम, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनकम डेटा से जो हमारा एक्सेल पे अवेलेबल था वहां पे हमने इनकम से करके यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रीड कर लिया एंड राइट डॉट टेबल से सेव कर लिया। अब अगर हम चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर अवेलेबल इन योर डेटा, देन यू कैन सिंपली टाइप एंड कॉल एंड इनकम। Call me the income data. Just
make a copy of it. Then ये भी इनकम कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको सेव कर दिया। then you want to see and call income spelling, हमारे पास वही वेरिएबल है ना, इनकम एंड हैप्पीनेस। वी हैव टू वेरिएबल्स अवेलेबल इन योर डेटा फ्रेम। सो यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि 2 है। अब आप ये जानना चाहते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर देयर इन दिस डेटा, तो आप जस्ट यहाँ पे क्या कर दें, एंड रो कर दें, एंड रो, ठीक है ना। ये क्या है 498। सो आप यहाँ कह सकते हैं that there are 2 variables which is available in this data, one is income and another is happiness, and there are 498 observations are there in the data। डेटा फ्रेम में हमारे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 498 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसके लिए, आपने इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्या हो गया, अब आपको चाहिए समरी, डेटा की समरी निकालनी है, क्या हो गया, तो उसके लिए सिंपल हमारे पास क्या कमांड है, समरी इज द कमांड। समरी कमांड आप यूज करके, और आपको जो भी आपने डेटा फ्रेम वो जहां क्रिएट किया है उसका आपको इट इज नेसेसरी टू असाइन द ऑब्जेक्ट नेम। वो ऑब्जेक्ट नेम हर जगह यूज होगा, वही ऑब्जेक्ट नेम यूज करके आप एनालिसिस करेंगे, वही ऑब्जेक्ट नेम आपको हर जगह यूज करना है। तो इट इज आपको क्या है, ऑब्जेक्ट नेम असाइन करना क्या होता है, जरूरी होता है। आप सिंपल रीड डॉट टेबल करके कॉपी नहीं कर लेंगे, ठीक है, वहां पे आप रीड नहीं कर लेंगे, आपको उस वहां पे क्या है कि उसको ऑब्जेक्ट नेम आप एक असाइन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम समरी निकालेंगे बाय यूजिंग द कमांड समरी, देन विद इन द ब्रैकेट यू हैव टू राइट द डेटा नेम। डेटा का नाम क्या है, इनकम इज द डेटा नेम। सो यू हैव टू एंटर द इनकम विद इन द ब्रैकेट्स, देन एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये समरी आ जाएगी। क्या समरी आ गई, जो 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वन इज इनकम एंड अनदर इज हैप्पीनेस, आपके पास उनके क्या आ जाएंगे, स्टैटिस्टिकल समरी आ गई। उसमें क्या दी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनकम, वो आ जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनकम, वो देखिए आपको मैक्सिमम भी दे दिया, क्या है, आपको फर्स्ट क्वार्टाइल दे देगा, आपको मीडियन दे देगा, मिडिल वैल्यू दे देगा, आपको थर्ड क्वार्टाइल देगा, जितने भी क्वार्टाइल्स है वो भी इन्होंने दे दिया, और इन्होंने ये भी बता दिया कि मीन क्या होगा इनकम। जो हमारा वेरिएबल है डेटा में जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ये उसने उसकी स्टैटिस्टिकल समरी दे दी है, दोनों की, इनकम की भी और हैप्पीनेस की भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम क्वार्टाइल्स और मीन सबकी इंफॉर्मेशन हमें आ गई जस्ट बाय टाइपिंग द कमांड समरी। समरी कमांड से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, सिंस वी आर टॉकिंग द इन टर्म्स ऑफ लीनियर मॉडल, हम यहाँ पे लीनियर मॉडल की टर्म्स में बात करें, सो इट इज वेरी नेसेसरी, जिस भी डेटा के बारे में आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस होते हैं लीनियर मॉडल के, इट इज नेसेसरी टू मेक देम फुलफिल, उनको हमें चेक करना है कि वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहला जो हम करते हैं चेक, वो क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास हम किसके बीच में इंडिपेंडेंस को चेक करते हैं, जो हमारे रिग्रेसर वेरिएबल्स होते हैं, हमें उनके बीच में इंडिपेंडेंसी को चेक करना होता है। हम क्या कहते हैं, जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है विच इज द आउटकम ऑफ द स्टडी, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और जो हमारा इनपुट ऑफ द स्टडी है which is denoted by x, which is in the right hand side, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंस वी हैव ओनली 2 वेरिएबल और हमारे राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो वी डू नॉट नीड टू चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास एक से ज्यादा होंगे, यानी इफ इन द केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, राइट साइड में हमारे जो इनपुट्स होंगे ऑफ द स्टडी के वो एक से ज्यादा होंगे, तो यू हैव टू चेक द इंडिपेंडेंस बिटवीन दोज वेरिएबल्स, ठीक है ना। आपको उनके बीच में क्या करना है, इंडिपेंडेंस को चेक करना है, तो वहां पे वो जरूरी है। तो इस अजम्पशन को यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट अजम्पशन इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी चेक करना है हमें, डेटा की क्या करना है, क्या चेक करना है कि नॉर्मल है कि नहीं। देखिए नॉर्मेलिटी चेक करने देयर आर सो मेनी ग्राफिकल मेथड एंड सो मेनी स्टैटिस्टिकल मेथड, बट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे और हिस्टोग्राम बनाएंगे। हम क्या चेक करेंगे कि हिस्टोग्राम से हम चेक कर लेंगे, हिस्टोग्राम से क्या होता है, हमें शेप पता चल जाती है, एंड शेप से हम ये पता कर सकते हैं अगर बेल शेप हुआ तो इट्स मीन इट्स अ नॉर्मल, रफली भी हुआ देन यू कैन से दैट इट्स अ नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हम बनाएंगे हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या करेंगे, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम द फंक्शन इज जस्ट हिस्ट,
ठीक है, हिस्ट इज द फंक्शन, देन विद इन द ब्रैकेट जो भी टर्म्स आएंगे वो क्या होंगे, वो आर्ग्यूमेंट होंगे। अब वो आर्ग्यूमेंट देखिए क्या हो जाएगा, वो आर्ग्यूमेंट वही होगा जो मैंने कहा ना कि जो भी आपने डेटा को क्रिएट किया है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट नेम असाइन किया है हर जगह, वो हमारा नाम जो होगा वो यूज होगा फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टैटिस्टिकल समरी, फॉर कंस्ट्रक्टिंग ग्राफिकल समरी, वो हमारा वहां पे यूज होगा। तो देखिए द कमांड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इज, हिस्टोग्राम के कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा क्या है, आपने क्या किया, हिस्ट इनकम डॉलर हैप्पीनेस। हम किसका बना रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक हमारे पास वेरिएबल है जो कि क्या है, हैप्पीनेस है। हमने क्या किया, उसका हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बना के देख रहे हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं। अब देखिए व्हाट इज द डॉलर रिप्रेजेंट, एज अथर सर हैज ऑलरेडी टेल यू, इट्स एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हैप्पीनेस का बनाना है कर्व, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ ये डेटा है ना, दिस इज योर डेटा, हाउ टू एक्सट्रैक्ट, ये इनकम डेटा है, मैं करती हूँ हेड, हेड इनकम, ठीक है। तो दिस इज योर डेटा, यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द हैप्पीनेस कॉलम फ्रॉम द डेटा इनकम, इनकम डेटा से हमें हैप्पीनेस को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्शन के लिए वी यूज डॉलर ऑपरेशन। हम क्या करेंगे, आप जस्ट इसमें कर देंगे इनकम डॉलर हैप्पीनेस, ठीक है। ये जैसे आप करेंगे हैप्पीनेस डबल ई, ठीक है। ये देखिए 498 ऑब्जर्वेशन एक्सट्रैक्ट हो गए ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। सो दिस इज द ये सॉरी डॉलर को ऑपरेटर को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर डेटा फ्रेम दिया हुआ है तो उसमें से क्या कर सकते हैं, जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है यू कैन एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग द डॉलर ऑपरेटर। तो यहाँ पे इन्होंने हैप्पीनेस कॉलम को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उनका उसका हिस्टोग्राम बना दिया है। तो जो हिस्टोग्राम आया है वो देखिए इस तरीके का आया है हमारा। तो हम क्या कहते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज रफली बेल शेप्ड, राइट। ये क्या है, ये रफली आपका बेल शेप्ड आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ऑब्जर्वेशन है, द कंसर्न द मोर ऑब्जर्वेशन इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ज्यादातर जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ है, मिडल पे है, एंड फीवर ऑन द टेल, जो हमारे इसको क्या कहते हैं, ये होता है टेल, भी डेटा हो गया ये इस तरीके का हमारा कर्व होता है, दीज आर द टेल्स, ठीक है ना, इनको हम टेल्स कहते हैं। नॉर्मल जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर्व आप जब भी प्लॉट करते हैं तो दीज आर द टेल्स, ये हम इनको कहेंगे कि ये टेल है हमारा, ठीक है। तो जो वहां पे जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, टेल पे फीवर ऑब्जर्वेशन है, और जो ज्यादातर जो कंसंट्रेशन है वो एट द मिडल पे है। तो हम यहाँ पे अगर आप इस पे कर्व बनाएंगे तो देखेंगे ये क्या है, दिस रफली फॉर्म्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी कैन प्रोसीड विद द लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो ये भी अजम्पशन हमने फुलफिल कर दिया। देन द नेक्स्ट अजम्पशन इज लीनियरिटी। Linearity is the next assumption. The linearity between the independent and dependent variable. समझ गए? Independent variable means we are talking about which variable, y or x. X and y are the two variables. और independent and dependent variable. Independent variable कौन सा होगा? Independent variable कौन सा होगा? अभी मैंने बताया भी था कि आई हैव डिस्कस कि जो हमारा y होता है, y डिपेंड करेगा कि नहीं डिपेंड करेगा। आप क्या स्टडी कर रहे हो, हमारी देखिए यहाँ पे इक्वेशन किस तरीके की आएगी, जो डेटा हमने लिया है, हम तो मैथमेटिकली इस तरह से लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट स्क्वायर बीटा 1x। तो यहाँ पे आप इसको ये डेटा फॉर्म में, ये डेटा दिया हुआ है तो क्या हो गया, y क्या है हमारा, y इज योर हैप्पीनेस, दिस इज हैप्पीनेस इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इनकम, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम y से डिनोट करते हैं जर्नल टर्म में। अब हम डेटा को हमने क्या कर दिया, आपने इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और ये इनकम क्या है आपका, दिस इज योर x। मैंने क्या बताया था, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ना किस तरीके से इनकम चेंज होगा। इनकम के चेंज होने पे ही हैप्पीनेस में चेंजेस, जो भी चेंजेस आएंगे उसको हम देखेंगे कि कितना है। तो हैप्पीनेस यानी जो y होता है इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे ये है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी लीनियर। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम यहाँ पे भी एक ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे टू फुलफिल दिस अजम्पशन। हम क्या करेंगे, हम स्कैटर प्लॉट के थ्रू इस चीज को चेक करेंगे कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो लीनियर है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इट फॉर्म्स अ पैटर्न, ठीक है ना, यहाँ पे इसका पैटर्न फॉर्म कर देखिए। हाँ, इसके लिए क्या फंक्शन यूज किया इन्होंने, प्लॉट इज द फंक्शन, गेट द स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे। सो प्लॉट इज द फंक्शन, और जितनी भी आपके अंदर चीजें आ रही है विद इन ब्रैकेट्स वो क्या है, वो सारे आर्गुमेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जिन दो वेरिएबल्स के बीच में यू हैव टू ग्राफ द स्कैटर प्लॉट, आपको वो दोनों वेरिएबल्स के नाम लिख देने हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया हैप्पीनेस टिल्ट, यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह हम टिल्ट लगाते हैं, टिल्ट इनकम। We have to find out the linear relationship between these two variables. So हमने इनके ही रिस्पेक्ट में क्या किया, प्लॉटिंग की है by using the plot function। तो यहाँ पे आपने क्या किया, हैप्पीनेस टिल्ट इनकम कर दिया। अब हमें नहीं पता कि ये हैप्पीनेस क्या है, इनकम कहाँ से आ रहा है। सो इट इज मैंडेटरी टू मेंशन द वेयर इट कम्स फ्रॉम दीज टू वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये जरूरी है हमें इस प्लॉट फंक्शन में ये मेंशन करना है ये कहाँ से आ रहा है। तो आपने कॉमा करके डेटा is the argument is equals to income, income is the data which you have defined, right, you have defined by using the function read.table function यूज करके हमने डेटा को इंपोर्ट किया था। अगर आपको याद हो, हमने डेटा इंपोर्ट कौन सा फंक्शन यूज करके किया था, read.table फंक्शन यूज करके किया था। तो आपने उस डेटा का नाम फिर से यहाँ लिख दिया, किसके अंदर लिखा है, आर्गुमेंट डेटा के अंदर लिखा है। तो यहाँ पे ये रीड कर देगा अब कि हैप्पीनेस कहाँ से आ रहा है, इनकम जो हमने डेटा क्रिएट किया था वहां से आ रहा है। इनकम कहाँ से आ रहा है, जो हमने डेटा जो डेटा वहां पे क्रिएशन हुआ था उसमें से, इसमें दो वेरिएबल्स है, वो कहाँ से है, वो इनकम डेटा से नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आपको प्लॉट दे देगा। अगर यहाँ पे आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये कह देगा हैप्पीनेस नॉट फाउंड या इनकम नॉट फाउंड, इस तरीके से एरर आ जाएगा इस पे, इफ यू आर नॉट मेंशन वेयर इट कम फ्रॉम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, ये स्कैटर प्लॉट आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका स्कैटर प्लॉट आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, द रिलेशनशिप आपने देख लिया, इससे क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, आपके रिलेशनशिप लुक्स रफली लीनियर, सो वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द एनालिसिस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। हम लीनियर रिग्रेशन करने से पहले हम कह रहे हैं these are the certain assumptions which are necessary to be get fulfilled। तो उनका हम उन assumptions को चेक कर रहे हैं कि डेटा जो है उस assumptions पे पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, हम जो हमारी एनालिसिस है हम उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जो फाइनल हमारा आता है कि हम किस तरीके से हम जो रन कर रहे हैं, हमारा जो डेटा है, इनकम डेटा है, उसको रन कौन सा फंक्शन यूज करके करेंगे, lm इज द फंक्शन, राइट, lm इज द फंक्शन विच इज यूज, किस लिए यूज करता है, फॉर द एनालिसिस ऑफ सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम दे दिया जहाँ पे हमने एनालिसिस की है किनके बीच में, हमारे पास जो इनकम यहाँ पे ये है ना, हैप्पीनेस टिल्ट इनकम। तो हम हमारी जो ये होती है क्या है, इक्वेशन जिस तरीके से दी होती है वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे ये है ये है ना आपका, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने बताया y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, राइट, ये होता है। ये क्या है हमारा यहाँ पे, फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा y रिप्रेजेंट हैप्पीनेस रिप्रेजेंट द y, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये दिस इज इनकम। तो हम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने मैथमेटिकली वहां पे इक्वेशन को लिखा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर कंसोल में बाय यूजिंग द फंक्शन lm, सेम हम ऐसे लिखेंगे, जस्ट बाय रिप्लेसिंग इक्वल्स टू टिल्ट। इक्वल्स टू को हमने किससे रिप्लेस किया, टिल्ट से रिप्लेस कर दिया, बस हमने ये किया। फिर हमने क्या किया, y जो होता है क्या है हमारा हैप्पीनेस, जो कि क्या है आउटकम ऑफ द स्टडी, टिल्ट इक्वल्स टू इनकम लिख दिया आपने, जो आपका नेक्स्ट वेरिएबल है, जिनके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन, यू वांट टू गेट द इन्वेस्टिगेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, तो आपने वो वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स, एक्स क्या है हमारा इनकम है, तो आपने ये लिख दिया। फिर यहाँ पे भी हमें क्या जरूरी है कि हमें ये मेंशन करना जरूरी है कि वेयर
the variable happiness and income comes from, कहाँ से ये जो हमारे वेरिएबल्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, तो इसमें भी हम कॉमा करके आर्गुमेंट डेटा लिखेंगे। देन आप जो इनका इन हैप्पीनेस और इनकम जिसके अंडर आपने जो भी कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट नेम आपका है वो आपने लिख दिया, इनकम इज द ऑब्जेक्ट नेम, सो यू हैव मेंशन इनकम हियर। यहाँ आप क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, यू जस्ट हैव टू एंटर, आप इसको एंटर कर दें। फिर क्या होगा हमारे पास ये आ जाएगा, जैसे आपने एंटर किया ये देखिए आपके पास क्या आ गया, हाँ इनकम एंटर कर दिया, कमांड रन हो जाएगी, राइट। उसके बाद टू गेट द समरी ऑफ द रिजल्ट, आपको जो भी समरी आई होगी उसके रिजल्ट देखने के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन है सिंपल समरी। आपने जहां पे लीनियर मॉडल LM फंक्शन यूज किया था, यू हैव असाइंड द नेम ऑफ दैट कमांड एज इनकम डॉट हैप्पीनेस। आपने जहां LM फंक्शन यूज किया वहां पे क्या हमने डिफाइन किया था, ऑब्जेक्ट नेम इनकम डॉट हैप्पीनेस इज द ऑब्जेक्ट नेम वेयर वी परफॉर्म द एनालिसिस। तो आपको जब आप समरी के लिए प्रिंट करेंगे तो यू हैव टू एंटर दैट ऑब्जेक्ट नेम, आपको वो ऑब्जेक्ट नेम क्या होगा यहाँ पे एंटर करना होगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने समरी और उसका ऑब्जेक्ट नेम जहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म हुई है, तो वो आप जैसे ही आप वो लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, आपके पास सारी समरी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये समरी आ जाएगी हमारे पास। पहले आपको ये सारी चीजें देंगे, मेन जो फोकस है वो कहाँ पे, कोएफिशिएंट। यहाँ पे आपकी ये जो हम लिखते हैं, क्या हमने लिखा है, हैप्पीनेस इज इक्वेशन हमने लिखी है, ये क्या है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इनकम। दिस इज, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, एस्टिमेट्स आ जाएंगे। किस किस के एस्टिमेट्स आ जाएंगे, ये जो हमारे अननोन पैरामीटर बीटा नॉट एंड बीटा वन आर द अननोन पैरामीटर एंड these two unknown parameters have to be estimated। इन्हीं दोनों पैरामीटर्स को तो हमें एस्टिमेट करते हैं, और बीटा वन के एस्टिमेशन के बेस पे ही तो हम सारा कंक्लूजन करते हैं, सारा इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट, बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.2047 एंड इसकी इनकम, यानी यहाँ ये क्या है, किसका कॉफी, बीटा वन का वैल्यू दी है। यहाँ बीटा नॉट जो है उसका एस्टिमेशन आ गया 0.20 एंड बीटा वन कैप का एस्टिमेशन क्या हो गया 0.71। ठीक है, ये क्या हो गया, दीज आर द एस्टिमेट, ये तो एस्टिमेशन हो गया। नेक्स्ट कॉलम इज स्टैंडर्ड एरर, हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है, काफी कम आ रहा है। फिर उसके बाद आती है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या आ रही है, द नेक्स्ट इज द पी वैल्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मेक द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द पी वैल्यू। आपको इस पी वैल्यू के बेसिस पे ही क्या करना है, कंक्लूड करना है। तो देखिए जो इनकम यानी जो बीटा वन इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी पी वैल्यू क्या, ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है, 0 आ रही है ना, 2 into 10 raised to the power minus 16, इट्स मीन अप्रोक्सीमेटली इट इज 0। पी वैल्यू क्या है, वो पी वैल्यू इज 0, पी वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0 आ रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया, पी वैल्यू इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इट्स 0। सो इसका मतलब है कि जो इनकम वेरिएबल है, जो एक्सप्लेनेटरी इनकम वेरिएबल है, इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएबल। सिग्निफिकेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसका इफेक्ट है जो कि हमारा आउटपुट ऑफ द, जो हम स्टडी कर रहे हैं हैप्पीनेस को, उस पर फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू जो होती वो ज्यादा होती हमारी पी वैल्यू, तो हम कहते हैं कि ये एक इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल है, there is no need to include this variable in your model, कोई जरूरत नहीं एनालिसिस करने की। बट since it is a significant variable, significant variable क्या कि it has effect on the happiness, happiness पे effect इसका पड़ेगा, so it's a important variable and we should include in our model। हमें इसे अपने मॉडल में क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द पी वैल्यू। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दे दिया इन्होंने ये बताया यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट जो कॉलम है वो क्या है, वो एस्टिमेट क्या है बता दिया, इंटरसेप्ट के क्या एस्टिमेट है एंड हैप्पीनेस के क्या एस्टिमेट है। सेकंड है वो क्या, स्टैंडर्ड एरर है, एंड द थर्ड इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, द फोर्थ वन इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसका, इसमें from these we can say that there is significant positive relationship between income and happiness। significant positive relationship का क्या मतलब है कि significant एक इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें आप यहाँ पे ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, you should include the variable income which is the input of the study, it is not insignificant, it is significant and you can include in your model। यहाँ पे क्या ये बता दें इन्होंने कि किस, जैसे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था आपको, y is equals to बीटा नॉट प्लस बीटा वन x। कैसे होगा इसका इंटरप्रिटेशन, ये होता है कि बीटा वन की जो भी वैल्यू आ रही है, दैट बीटा वन कॉजेज अ चेंज इन
the variable y which is the output of the study as x changes by 1 unit. जैसे जैसे x जो होगा वो चेंज होगा वैसे वैसे वहां पे जो बीटा 1 की जो भी वैल्यू है उतनी वैल्यू से हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स वेरिएबल पे चेंज आएगा, ठीक है ना. सो दैट्स द वे यू कैन इंटरप्रेट योर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. सो आफ्टर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल मैंने बताया था हमारे पास क्या है, आगे क्या हम पढ़ेंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा रिग्रेसर्स हो जाएंगे. ये जो x है ये सिर्फ इनपुट ऑफ द स्टडी में सिर्फ एक वेरिएबल नहीं होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे. तो वहां पे हमें क्या करना होगा, जब एक से ज्यादा, जैसे कि जब हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स थे, देन वी डू नॉट नीड टू चेक द, जो हम अजम्पशंस हमने चेक किए हैं, इंडिपेंडेंस के चेक किए, हमने नॉर्मैलिटी के चेक किए, हमने लीनियरिटी के चेक किए. तो इंडिपेंडेंस में हमने क्या कहा था कि वहां पे हमें जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं हमारे पास, एक इनपुट एंड दूसरा आउटपुट, ठीक है ना, एक, तो हमें चेक करने की जरूरत है. अब मल्टीपल में यू नीड टू चेक द कोरिलेशन. तो क्योंकि हमारे जितने भी रिग्रेसर वेरिएबल हैं इनमें कोई रिलेशनशिप तो नहीं, क्योंकि ये अजम्पशन है कि ये क्या होना चाहिए, ये आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ना कि डिपेंडेंट. डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है, वो की जो कि क्या, विच इज ऑन द लेफ्ट साइड डिनोटेड बाय y, रिस्पांस वेरिएबल, इसीलिए हम इसको रिस्पांस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो क्या है, वो है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, मैंने आपको डेटा दिखा दिया है कि डेटा क्या है हमारा, डेटा इज हार्ड डेटा. सो दिस डेटा, इस डेटा में क्या हमारे अवेलेबल है, 3 हमारे पास वेरिएबल्स अवेलेबल है. तो अगर हमें इसको भी चेक करना होगा, जैसे हमने यहाँ डेटा फ्रेम को क्रिएट किया था, डेटा फ्रेम क्रिएशन किया था, तो यहाँ पे आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं. कैसे क्रिएट करेंगे, आपने एक ले लिया बाइकिंग का, ठीक है, उसको आपने लिख दिया, मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल डेटा ले रही हूँ, ठीक है, ये हो गया. दूसरा आपका क्या है, दूसरा है हमारा स्मोकिंग. स्मोकिंग आपने डेटा ले लिया, स्मोकिंग, ठीक है ना. ये इसको क्या कहते हैं, ये जो मैं यहाँ पे डेटा को, क्रिएशन ऑफ डेटा है, तो कौन सा फॉर्म है क्रिएशन ऑफ डेटा का, इन विच फॉर्म वी आर, आई एम क्रिएटिंग डेटा हियर, इट्स अ वेक्टर फॉर्म, राइट, इट्स अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है. तो हम यहाँ पे स्मोकिंग का भी एस डेटा को एंटर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा. द थर्ड वेरिएबल इज heart, right, heart is the third, heart dot disease, and I'm just writing heart dot disease, right. Okay. Now for creating a data frame, what is the function, function is data dot frame. हम क्या करेंगे, जितने भी हमने, हमारे पास जितने भी जरूरी नहीं, ये तो ये हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है. अगर क्वांटिटेटिव डेटा के अलावा अगर आपके पास किसी भी तरीके का डेटा है, फैक्टर में है या कैरेक्टर में है, तो आप उन डेटा का भी क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिक है तो हम उनको ही डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, डेटा 1 हम इसको ले लेते हैं क्योंकि हम पहले डेटा यूज कर चुके हैं. तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट नेम से यू कैन असाइन. तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डेटा डॉट फ्रेम यूज करके, डेटा डॉट फ्रेम आपने यूज किया. देन क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्ट नेम है जो कि आपने वेक्टर फॉर्म में डिफाइन किए हैं ऊपर, उनको आप कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे लिख देंगे. तो हमारा क्या होगा, डेटा फ्रेम जो है वो क्रिएट हो जाएगा. तो ये आपने कर दिया, यहाँ पे आपने कर दिया. अब ये हो गया. प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, दिस टाइप डेटा 1 द ऑब्जेक्ट नेम इन विच यू हैव क्रिएट अ डेटा फ्रेम, वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर देंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटा फ्रेम जो है वो क्रिएट होके आ जाएगा. तो इस तरीके से आपने इसका भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेना है. अगर आपके पास डेटा नहीं अवेलेबल है, अगर है तो आप क्या कर लेंगे, सिंपली इसको इम्पोर्ट कर लेंगे. इम्पोर्ट करने का बताइए क्या फंक्शन बताया मैंने, what is the function which I told, read dot tables. read dot table is the function, right. तो उसको करने से पहले हमें क्या करना होगा, मैंने बताया कि जो भी आपका एक्सेल फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप सबसे पहले उसको पूरे को सिलेक्ट करके उसको कॉपी करेंगे. उस डेटा को कॉपी करने के बाद ही read dot table कमांड जो है वो जो है क्या होगा, वो रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. The very first step is to call your data and the second step is to save your data. Data save करना is also very important. जैसे ही आप डेटा को कॉल करें उसके बाद आप क्या करें, डेटा को सेव कर लें, राइट. तो अब डेटा जब हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देन
क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम, अब देखिए हम ना, हमारा जो सिंपल अगर आपको समझ में आ गया तो ऑन दिस इन द सेम पैटर्न यू कैन गो फॉर मल्टीपल लीनियर इक्वेशन, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, बस कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। फाइनल जहां पे आप LM फंक्शन यूज करेंगे वहां मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप मल्टीपल को भी हैंडल कर सकते हैं और सिंपल भी मैंने बता दिया किस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, अगर आपको देखना है स्टार्टिंग 5-6 ऑब्जर्वेशन, देन यू कैन यूज द फंक्शन हेड, देन ब्रैकेट ओपन एंड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम लिखना है वो वाला जिसमें आपने, जहां पे आपने डेटा को क्या किया है, क्रिएट किया है, जहां आपने डेटा क्रिएट किया बाय यूजिंग द फंक्शन रीड डॉट टेबल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने फिर ये टेल दिखा दिया, टेल विल गिव यू द लास्ट 5 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज द समरी, समरी अगर हमें डेटा का कैसे निकालें, देन the function is simple, the summary लिख देंगे और जो हमारा डेटा होगा हमने वो लिख दिया। तो यहाँ पे भी आपको डेटा की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल की क्या है, हमें समरी आ गई कि व्हाट इज द मिनिमम value of the variable biking, what is the maximum value of the variable biking, similarly for the smoke and the heart disease, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ये डेटा होगा, ये किस, जो हमारा मॉडल बनेगा वो कैसा होगा, ये होगा heart dot disease, ठीक है। दिस इज द आउटपुट ऑफ द स्टडी, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 बाइकिंग प्लस बीटा 2 स्मोकिंग, राइट। ये इस तरीके से हमारा ये मॉडल हो जाएगा, जो आपने लीनियर मॉडल को क्या किया, इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे समराइज कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये समरी आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट देखिए ये है आपका, फिर हम यहाँ पे अजम्पशंस को चेक करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड पे तो इनपुट ऑफ द स्टडी वो एक नहीं है, जो कि जैसे कि हमारे सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में थी, सिर्फ एक ही वेरिएबल था। यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास वी हैव 2 वेरिएबल, वन इज बाइकिंग एंड अनदर इज स्मोकिंग, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू चेक वेदर दीज 2 वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। हमें क्या चेक करना है कि ये दोनों वेरिएबल्स जो है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन क्या है उसको चेक कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम इनके बीच का कोरिलेशन को चेक कर लेंगे एंड द फंक्शन यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल इज COR। COR इज द फंक्शन टू गेट द कोरिलेशन। कोरिलेशन के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो क्या होगा, कोर होगा। देन ब्रैकेट ओपन, जिसके बीच में उन वेरिएबल्स का नेम ऑफ द वेरिएबल्स अमंग विच यू वांट टू फाइंड आउट द कोरिलेशन, जिनके बीच में आप कोरिलेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने कोड लिख दिया, राइट। देन ब्रैकेट ओपन, अब मैंने बताया इट इज नॉट जस्ट, अगर आपने लिख दिया बाइकिंग एंड स्मोकिंग देन इट, और आपने एंटर कर दिया तो ये कहेगा कि बाइकिंग इज नॉट फाउंड और स्मोकिंग और नॉट फाउंड, इस तरीके के एरर्स आएंगे। तो हम क्या करें, हमने क्या किया है, जैसे मैंने बताया कि ये डॉलर है, क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, दिस इज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड यू एक्सट्रैक्ट द बाइकिंग वेरिएबल फ्रॉम द हार्ड डेटा। जो हमारा हार्ड डेटा है, जो आपका डेटा फ्रेम का जो आपने नाम दिया है, देखिए ये डेटा का नाम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट नेमिंग क्या किया आपने, हार्ड इज द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द डेटा, सो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द वेरिएबल फ्रॉम यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट नेम। उस ऑब्जेक्ट नेम को यूज करके हमें जो भी वेरिएबल हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्शन कौन से ऑपरेटर के हेल्प से करेंगे, बाय यूजिंग द ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डॉलर। डॉलर इज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हियर। तो यहाँ आपने हार्ड डॉलर बाइकिंग कर ली तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा डेटा आ जाएगा, बाइकिंग का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आपने हार्ड डॉलर स्मोकिंग कर ली तो जो भी आपका डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम से वो सिर्फ स्मोकिंग में स्मोकिंग के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशंस आई है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एंड यू हैव टू फाइंड आउट, हमें इन्हीं के बीच में क्या करना है, कोरिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमने हार्ड डॉलर बाइकिंग किया है, देन सेपरेट किया है कॉमा से, देन हार्ड डॉलर स्मोकिंग किया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि कोरिलेशन कितना आ रहा है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंसी को चेक करना है। तो हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। कोरिलेशन कितना रहा, देखिए 0.015, ठीक है। क्या रहा पॉइंट, Sorry for interrupt, ma'am. यस Could you continue in English, please? ओके, ठीक है। तो we have to find out the correlation between the 2 variables, right? And the 2 variables is biking and smoking. So the function which is used is core, ठीक। And then we use the dollar function for the extraction of the variables from the hard data, which we have already assigned, which we have already created by using read.table function. So here in this function, you just write the function core,
You have to find the correlation between biking and smoking. So we just write the function code, then bracket open, then extract the biking variable from the hard data by using extraction operator $. Okay, this will give you the only variable of biking, only observation of biking, then separate it by comma, then comes to the next variable among which you want to find the correlation, right? तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा hard, then dollar smoking. It will give only the observation which comes under smoking. So the correlation between these two variables is 0.0151, right? 0.0151 variable. This is the correlation. When we run this code, the output is 0.015. The correlation between biking and smoking is very small. It says that the correlation between these two variables is very small. So you can avoid the correlation. You can say there is no relationship between these two variables because the correlation value is very small. On the basis of this numerical value, you can conclude the correlation is the biking variable and smoking variable are not at all correlated with each other. You can say on the basis of this value. So we can include both parameters in our model. If the correlation exists, then there are certain methods to eliminate the correlation, or you can just eliminate that variable. So आगे की बात है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो whatever be the correlation value, since the correlation value is very small, so you can say कि the variable biking and the variable smoking is important, play an important role for the output of the study, which is heart disease. So we can include these two variables in our model, right? Next thing, correlation, first assumption is get fulfilled. Now come to the second assumption. Second assumption is again normality, right? Normality is the second assumption. Yeah, so you have made the इसमें क्या करना है, हाँ, since we have three variables, right? Heart, then or heart and biking is smoking, right? We have three variables. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, we can check this using the distribution of observation जो आ जाएगा वो हमें देखना है कि वो किस तरीके का आता है, किसके बीच में हमने कंस्ट्रक्ट किया है. We have construct the histogram of heart disease, ठीक है, which is output of this. Similarly as we have done for the happiness, ठीक है ना, happiness के लिए जैसे हमने किया था, similarly we will do for heart disease. So the histogram function क्या हो जाएगा, function is not written here, so what would be the function? The function is just hist and argument जिसके लिए हमें, for which we want to construct the histogram. तो histogram किसके लिए construct करना है, we have to construct the histogram for heart disease. So heart disease is the variable, is one of the variable among the three. तो हम क्या करेंगे, we have to extract that variable from the heart data. So what we have written the heart dot disease. Heart dot disease will give the variable, will give the observation which comes under heart dot disease variable, right? So hist function will construct the histogram of heart dot disease. This would be the command. Command is not written here, so I'm just writing the command. This will give the histogram of heart dot disease. यहाँ पे भी you can conclude, आप क्या conclude कर सकते हैं कि the distribution of the observation is roughly bell shaped, right? It is roughly bell, so we can proceed with the linear regression. हम क्या कर सकते हैं, आगे analysis के लिए हम इसको consider कर सकते हैं, consideration में है, under consideration हो सकता है, ठीक है. So two assumptions are get fulfilled. Now come to the third assumption. What is the third assumption? Third is the assumption of linearity, right? Linearity assumption. Assumption of linearity. So हम क्या करेंगे यहाँ पे, what we done here, we can check this using two scatter plot. Since this is the case of multiple linear regression model, in the simple linear regression model there is only one possible scatter plot, right? Since this is the case of multiple linear regression model, so we can check this using two scatter plot.
right? हम two scatter plot हैं, one is heart disease against spiking and another is heart disease against smoking. So although the relationship between smoking and heart, ये तो आपको दिख रहा है smoking and disease and spiking, इसका तो आपको एक pattern, you can easily see the pattern between these two variables, but between smoking and heart disease, the relationship between these two variables is a bit less clear. It is still appear linear. You can say it is still appear linear. You can ये कह सकते हैं कि it forms such pattern, right? This pattern is formed here. You can say that it is appear as linear, and we can proceed further for the analysis, right? So all the three assumptions is get fulfilled. Now you can perform your linear regression, multiple linear regression analysis. The function which is used is again LM, right? As we have done in the case of simple linear regression model, the multiple linear regression analysis will also get analyzed by using the function LM. What is the just function? देखिए, this is the object name which we assign for the analysis, right? And heart disease is that's the equation. Heart dot disease is equals to beta naught plus beta 1 Viking and plus beta 2 smoking. This is your equation. क्या करते हैं? We just write this equation here. हम इस इक्वेशन को यहाँ पे जस्ट लिख देंगे. तो you have written first, you have write the output of the study, that is the response variable. Heart disease equality is replaced by tilde, so you just make the sign of tilde. Then जो भी आपके दो वेरिएबल, whatever be the two variables, you have to write there. In simple linear regression model, there is only one variable. You just have write the income in that case, right? जितने भी आपके regressor variables मिलते जाएंगे, the number of variables increase, you have to add it in LM function, right? The another function is smoking, so you just make the addition sign and write the variable name smoking. If there is some more variable, then you just have to make the addition and write the name of that variable. जितने भी variable you make the addition, then that the case of multiple linear regression model. बस इतना सा फर्क है और function हमारा वही use होगा. Then the very important जो मैंने पहले ये बताया था, you have to mention that from where these variable come. ये variable कहाँ से आ रहे हैं? तो you have to mention the data. Data mention करना is very necessary. So just write the data under the argument data. Data is the argument in which you have to write the name of the data which you have assigned. जो आपने assign किया उस data का हमें यहाँ पे नाम लिख देना है, right? हम जो write the data name under the argument data which you have assigned, जो आपने assign किया, and it would be anything. जो आप assign कर रहे हैं याद रखिए बस वही लिखना है आपको. उसके अलावा आपको you cannot write anything. If you are writing anything else, then it will give an error. ये आपको error दे देगा फौरन कि biking and smoking is not found. Right, इस टाइप के एरर आ जाएंगे. अब यहाँ पे क्या होगा? इन दिस स्टेप एनालिसिस हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ यू वांट टू सी द रिजल्ट. अब आपको क्या करना है? जो एनालिसिस हो गई है, नाउ यू वांट टू सी द रिजल्ट. आपको ये रिजल्ट्स देखने हैं कि रिजल्ट्स क्या है हमारे. तो उसके लिए सिंपल जो फंक्शन है फॉर दिस, द फंक्शन इज सिंपली समरी. समरी इज द फंक्शन. देन you have to write within the summary bracket, you have to write the object name which you have earlier done in the LM function. जो आपने LM function में जो भी object name assign किया, you have to write that name in the function summary. Summary function में हमें क्या कर देना है? उसका यहाँ पे लिख देना है. ठीक है, जैसे आप summary करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? Results जो है, results will come on your R console file. ठीक है, जो फाइल में आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपके क्या आ जाएंगे? सारे रिजल्ट्स देखे आ जाएंगे. तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम विल गिव द एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी जो हमारे पास अननोन पैरामीटर्स हैं. ऑल द इन मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल वी हैव 3 अननोन पैरामीटर्स. सिंपल रिग्रेशन मॉडल we only have 2 unknown parameters, that is beta naught and beta 1. But in multiple linear regression model, the unknown parameter will depend how many number of regressors you have. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कितने क्या है ये, तो इंटरसेप्ट बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट एंड वी हैव 2 रिग्रेसर्स. क्या हो जाएगा? बीटा 1 एंड बीटा 2 आर द नेक्स्ट 2 अननोन पैरामीटर व्हिच यू वांट टू एस्टिमेट. जो आपको क्या करना होता है? एस्टिमेट करना होता है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट का एस्टिमेट क्या आ रहा है? 14 पॉइंट, बीटा नॉट इज 14.98, बीटा 1
ठीक है, विस्तार में बाइकिंग डिफाइन किया होगा अपने डेटा में. बीटा 1 is -0.20 and बीटा 2 is 0.17. यहाँ हम देखेंगे the second column is the column of standard error which are very less than the test statistic, and we have to make the conclusion on the basis of these p values, and we can say that these p values is very small. -16, it means it's approximately, it's exactly equals to 0, right? All the p values are 0. It means, what does it mean? Ki all the two variables, biking and smoking, is a significant variable. Smoking and biking is a significant variable which has a significant on the heart disease, right? And you have to include these two variables in your model. हमें क्या करना होगा, इनको हमें include करना is necessary. आप you cannot exclude any one of the variable among these two. इन दोनों में से किसी एक को भी ऐसा नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक आता जिनकी वैल्यू जो है वो p value is not very small, and you conclude that this biking variable is not a significant variable, then in the next step you form a reduced model. In reduced model आप क्या करेंगे, you just remove the variable biking. क्यों biking के variable को remove करेंगे? Because on the basis of your analysis you have found that it is not at all significant, it has not a significant effect on the output of the study, that is heart disease. So there is no need to include in your model. तो आप उसको exclude कर सकते हैं. But यहाँ पे जो case आ रहा है, यहाँ पे क्या है, जो हमारे दोनों variables, both two variables are a significant variable. जो क्या है, ये significant variable है, and you can include in your model. आप इसको क्या कर सकते हैं, include कर सकते हैं. यहाँ पे there are also certain some interpretation. The estimated effect of biking on heart disease is -0.2. ठीक है, हमने देखा बाइकिंग का एस्टिमेशन कितना था, -0.2 था, while the estimated effect of smoking in 0.178. इसका मतलब क्या हुआ, that for every 1% increase of biking to work, there is a correlated 0.2% decrease in the incidence of the heart disease. इसी तरीके से for every 1% increase in smoking, there is 0.178% increase in the rate of heart disease. ठीक है, उसके बाद यही सारी चीज लिखी कि whether these two variables are significant and or not, and you have to take these two variables in your model. So that's about the simple and multiple linear regression model, which I have analyzed by using these two data, in which you have studied that how to import your data, how to create your data using data.frame, right? And how to analyze simple linear regression model and multiple linear regression model by using LM function. So that's all about this session. If anyone wants to ask some question. Yes, ma'am. Nicely explained, and thank you, ma'am. I want to ask one question, that you upload data from the Excel sheet by using the some read table function and by the write table function. I know, and find the data, find the result according to your linear regression and the logic linear and the multiple linear regression. But my question is that suppose the data is missing. Yes, suppose the data, in case of the data set, some value is missing. So how to find the result according to your missing data? Because the data is available, all the data is available in case of the happiness and the income, but some data is missing in your happiness column, and some data is missing in case of the income column. So in case the result of the shall be not correct in case of the linear regression and in case of the logical, in case of the multiple linear regression. So how to solve the problem of the missing value in R? How to solve the missing value? Actually, Dr. Varun Tiwari. Yes, Dr. Varun Tiwari. I didn't work on missing value data, but I will. What is your question? I will try to find out that how to make analysis of simple linear, multiple linear regression model when some of the data is missing in our data. Okay, ma'am. Sir, I would like to answer Mr. Dr. Varun Tiwari. Yes, ma'am. Please continue. There is a provision of given an argument na.rm. Okay. na.rm. Okay. When you use that argument in the vector,
So, If you are creating any vector. so that basically used for the RN is for the random purpose or a No. NA? NA.RN removes all the Okay. NA variables. I mean, not available values. Okay. NA values. So that the drop underscore Yeah, duplicate is not available. I mean, with this argument, we are going to drop those. Okay. Those records, and also if we do not want to drop that records in order to have a good safe analysis, then we can go for the missing value imputation technique, where sometimes we impute mean values, Yes. mean value of the whole column Okay. in place of that NA values, or sometimes in case of categorical variables, we generally do impute it with the most occurring value of the variable in case of categorical data. Okay. Thank you so much, ma'am. Any more query? Participants, any question? Well, I think dear participants, I would like to inform you that the person who was answering the query, she is your third resource person. She is Dr. Romana Shehla. So she will be taking your sessions tomorrow, inshallah. Okay, nice to meet you. Dr. Rahman Sahab, you may please. Thank you. Well, thank you very much, Dr. Yasmin Khan, for your nice explanation. I think It was quite elaborative. I think, very nice explanation was given by her. Yes, Yeah. correct. And Dr. Romana Shehla, for your nice support, for answering the query of Dr. Varun. I hope Dr. Varun is satisfied with your explanation. Yes, of course, sir. Very nice. So with this this session come to an end, and we shall join hopefully on day 2 first session on 6th, that is tomorrow at 4 p.m. Till then, thank you all very much for your thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.